first see your syllabus. Again I am showing you to your syllabus, that is सबको विजिबल है मेरी स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. वेरी गुड, शाबाश। बेटा देखो, your syllabus is divided into how many parts? 2 parts. First one is the Employability skills. very good, employability skills, and second one is about the Vocational skills. Employable skills. vocational skills, ठीक है। And this employability skills comes for the, in annual examination it will comes for the 10 marks, understood? And this one same for the 10th class also, यही portion रहना है, ठीक है। And it comes for the 40 marks, clear है? vocational skills means, vocational skills का meaning है subjective knowledge. Employability skills you have inside it, that is 5 chapters. First one is communicational skills, COMM, sorry, communicational skills. Second one is self management skills, okay. And third one is ICT, information and communication technology skills, ICT skills. Fourth one is green skill, and fifth one is entrepreneur skills, okay. This is the fourth one, that is the entrepreneur skills. Okay, now vocational skills you have, see here, this is for the 10th class. Now for the 9th class, now see in vocational skills how many chapters you have in vocational skills. See, this is your book. You all have book? This soft copy? No, sir. Yes, sir. This okay. No, If you don't have, I will send today only, okay. I will send after the class, I will share this book to you, clear hai? Yes, now listen. Yes. हाँ, see, ये आपकी बुक है 189 पेज की, ठीक है। नो नीड टू परचेज फ्रॉम, आपको परचेज करने की भी नीड नहीं किसी बुक को। आई विल सेंड द PDF of this book, that is NCERT book or the CBS. Yes, any problem? Now see this book. किसी नेट प्रॉब्लम आ रही है। See here, that is, I think total 5 chapters are there in this also. And now see, what is the first chapter in subjective knowledge? That is introduction to IT and ITES, ITES industries, IT and enabled services industries. Okay, information technology, IT means information technology क्या होती है, और information technology enabled services कौन कौन सी होती हैं, ये सब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। और आप मुझे, I hope that you created the notes of that. If you seen my videos, I completed, I already explained about the exercise of that, all the answers in the exercise portion of this chapter, वो सारा कवर किया है मैंने, ठीक है। और सेकंड चैप्टर क्या है आपका, दिस वन इज अबाउट द डेटा एंट्री
and the keyboarding skill. Data entry means, understood, to become an operator. Means if you want to acquire the knowledge or the skills of an operator. आपने सुना है operator कौन होते हैं? Data entry operator कौन होते हैं? ठीक है, जिसके पास, ठीक है, the person that having or the skills to enter the numerous or huge amount of data in quickly or in a well mannered way. Clear? That skills are there. Means you should know what is your keyboard, because all the data you have to enter from the keyboard, and you should learn about the keyboard in this chapter. कि कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, शॉर्टकट कीज कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, हाउ फास्ट यू कैन टाइप फ्रॉम द कीबोर्ड. ओके, दीज ऑल आर इन योर दिस चैप्टर. ठीक है, कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड में कितने कितने टाइप की कीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज, एंड द टाइपिंग नॉलेज अंडरस्टूड. मीन्स विदाउट सीइंग द कीबोर्ड कीज, इफ यू आर टाइपिंग any matter onto the screen or the ठीक है, that means clear. So that knowledge you have to be given in this chapter. Understood? Or I already completed this thing, these all in this chapter in video portion. आप लोगों को बेटा मैं वीडियो के लिंक्स आज और भेज दूंगा, तो यू हैव टू कवर्ड फ्रॉम एयर. आपके जो डाउट्स हैं, दीज आर वेलकम. आपके डाउट्स हैं, आप लोग पढ़िए उसको. जो भी आपके डाउट्स हैं, I will assign 2-3 class, no problem. Your all doubts are welcome. Understood or not? Yes. Yes, sir. हाँ, Yes, yes. sir. आपके डाउट के लिए 2-3 क्लास हम रख लेंगे, नो प्रॉब्लम. ठीक है, अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट वीक, लिसन, नेक्स्ट वीक हमारी क्लास 3 days है ना? 3 days. हाँ, Thursday, Friday and Saturday. Okay. Excuse me, sir. Yes, please. Yes, please. बेटा, yes बोलिए. बेटा बोलिए प्लीज. यस प्लीज. रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हैं. बेटा रिकॉर्डिंग इज, रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हैं. नेट नहीं आ रहा. I am also recording these all things. Okay, and recording videos will also be sent for the daily basis classes. क्लियर? डेली क्लास में हम जो भी करते हैं, जो भी पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं या कुछ भी डिस्कशन कर रहे हैं, दैट ऑल वीडियोस, क्लियर, आई विल रिकॉर्ड ऑन द डेली बेसिस, दैट आई विल सेंड टू यू इन योर ग्रुप. अंडरस्टूड? नाउ लिसन, नेक्स्ट वीक प्लीज रिमेंबर वेरी केयरफुली, नेक्स्ट वीक जो थर्सडे है, योर डाउट्स आर वेलकम फॉर द थर्सडे. दिस चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 के जो डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं थर्सडे को. आई विल टेक द टेक्स्ट ऑन नेक्स्ट कमिंग क्लास, दैट इज थर्सडे को ही मैं आपके क्या लूंगा, टेस्ट लूंगा इस चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का, इंट्रोडक्शन टू द आईटी और आईटी इंडस्ट्रीज. दिस चैप्टर टेस्ट आई विल टेक. अंडरस्टूड? समझ में आ गया? क्लास में तो आपके डाउट्स वेलकम है, नो प्रॉब्लम. आफ्टर क्लास आई विल टेक योर टेस्ट फॉर दिस चैप्टर ओनली फर्स्ट. ठीक है, फ्राइडे सेकंड चैप्टर के डाउट्स, और आपकी, ठीक है, फ्राइडे को टेस्ट होगा सेकंड चैप्टर का. यू आर लिसनिंग टू मी ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, यस, वेरी ओके. तो समझ में आ गया मैंने क्या बोला आपको. थर्सडे को तो आपके इस चैप्टर के ऑल डाउट्स आर वेलकम फॉर द चैप्टर 1 ऑन द क्लास, इनटू द क्लास. सेकेंड फ्राइडे, सेकेंड चैप्टर डाउट्स आर वेलकम
After that I will take the test of this chapter. Clear? Then now from today I am starting this chapter number 3. अब हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? This chapter number 3, that is the digital documentation. Okay, now I am starting Excuse me, this. sir. Yes, please. सर आप ये इन दोनों चैप्टर्स की वीडियो दोबारा सेंड कर सकते हो? बेटा बिल्कुल, वीडियो यूट्यूब पे है, मैं उसका लिंक भेज दूंगा, आप लोग देखिए वीडियो को बहुत अच्छी तरह से. ओके सर, थैंक यू सर. ठीक है, नो प्रॉब्लम. आज ही मैं अभी भेज दूँ क्लास के बाद ही जस्ट. ठीक है. यस, नाउ सी, अभी आपको ठीक है चैप्टर 1 और 2 के वीडियोस देखने हैं. नाउ आई एम स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 3, यूनिट नंबर 3, दैट इज डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन. और टोटल देखो बेटा 5 चैप्टर्स ही हैं. ये 5 चैप्टर आपके कितने मार्क्स के आएंगे? 40 मार्क्स के आएंगे. और 10 मार्क्स का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होगा एनुअल एग्जाम में. अंडरस्टूड? नाउ लिसन, who will tell me about the what do you mean by the documentation? What do you mean by the documentation or the document? First you have to tell me the document, then you tell me about the documentation, then digital documentation. Now who will tell me about the document? What do you mean by the document? Please. Sir, a file in which information is kept. A file in which informations are kept in any form, either in text or the symbols. Understood? Or Yes, sir. in pages, in paragraph, in sentences, in characters, in in any format, in images, in videos, in audios. That file is known as what? Document. Very good, shabash. And now tell me, what do you mean by the documentation? Second word that comes in this chapter, that is the documentation. Please tell me. Yes, please. Materials that provide us information or together records. Documentation, अरे जब document बता दिया तो means the process of creating or managing the document is known as the documentation. Understood? Clear? The process Yes, sir. of creating, editing, deleting, managing, updating, everything means same in single word. The process of managing document. Management means creating, edition, deletion, removal, understood, of the text into the document. That is called the documentation. Understood? Clear? चलो इतना भी समझ में आ गया, आपको डॉक्यूमेंट समझ में आ गया है, डॉक्यूमेंटेशन समझ में आ गई है. नाउ नेक्स्ट थिंग, इसमें एक वर्ड आ रहा है दैट इज डिजिटल. सुना है ये वर्ड आपने? यू लिसन दिस वर्ड. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बताइए जल्दी से डिजिटल का मीनिंग क्या होता है? नाउ देयर आर 2 वर्ड्स. Related to electronic. एक मिनट, 1 minute. See, you have 2 words, that is, first word is digital, second word is analog. So what do you mean by here digital data or analog data? You learned about data क्या होता है? What do you mean by the data? Data or data? Sir, raw facts and figures. Yes, very good. Raw facts and the figures. Okay, that is called the data. Okay, understood. Now data can be in 2 forms here, that is digital or analog data. Now what do you mean by the digital data or the analog data? Sir, digital means electronic technology. Yes, digital means the electronic data, means the data that are taken or that are received or that are manipulated by electronic devices, that are into the form of 01010101 or the low voltage or the high voltage, means the data into the form of 01010101. Understood? Clear? Or 0 means the low voltage or 1 means the high voltage here, low and high voltage. Understood? Clear? Means the data in form of 0 and 1, that is the electronic, means because your computer system is an electronic device. Clear? An electronic device to input the signal or to process the signal
your signal into the form of either you pass the electricity or you not pass the electricity. If you are passing means that means the high voltage, HIGH, high voltage, understood? If you are not passing that means the low voltage, LOW. यहाँ पे नो का मतलब जीरो, ठीक है, वो नहीं होता है कि नहीं पास करने का मतलब LOW, लो वोल्टेज होता है, और लो वोल्टेज रिप्रेजेंटेड इनटू द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बाय द जीरो. अंडरस्टूड दिस थिंग? क्लियर? यस. नाउ ये तो हो गया हमारा दिस वन अबाउट द डिजिटल डेटा. अंडरस्टूड कि डिजिटल डेटा क्या होता है? 0101 की फॉर्म में जो हमारा डेटा होता है, जिसको कि इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेज होती हैं, जिसको प्रोसेस कर सकती हैं, डेटा को अपने अंदर स्टोर कर सकती हैं, मैनेज कर सकती हैं, दैट काइंड ऑफ डेटा इज द डिजिटल डेटा. नाउ एनालॉग डेटा. व्हाट आर द एनालॉग डेटा? जिस भी सिग्नल का क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है. एम्पलीट्यूड मीन्स हाई एम्पलीट्यूड, लो एम्पलीट्यूड. जैसे एयर होता है, एयर, यस, कि कभी लो कभी स्लो कभी क्या, हम उसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, मीन्स अंडरस्टूड. कभी हाई एम्पलीट्यूड कभी लो एम्पलीट्यूड, मीन्स व्हाट इज द एम्पलीट्यूड. जैसे वेव्स होती, वेव्स, दीज आर द वेव्स काइंड ऑफ डेटा. कि ओनली वी कैन मेजर द हाई एम्पलीट्यूड एंड द लो एम्पलीट्यूड ऑफ दैट काइंड ऑफ डेटा. So that kind of data is known as the analog data. Understood? जैसे temperature, air, pressure, these kind of data are known as the analog data. Understood? Clear? Okay. So yes. Now listen. अब आप मुझे बताइए, understood about the digital term? कि what do you mean by the digital term? भाई टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, नॉट वन वे कम्युनिकेशन, तो इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. Yes, sir. Only one Yes, student. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ ओके. ऐसे Yes. ऐसे नहीं भाई, एक बार में तुरंत बोलना चाहिए, ठीक है. मैं भी तो बेटा सुबह से, आज मेरी 5th क्लास है मेरी, सुबह से मॉर्निंग से, देखो मैं भी उतना ही एनर्जेटिक हूँ अभी भी. यस. नाउ लिसन. देखो अब टर्म आ गई हमारी. नेक्स्ट टर्म इज, now you know about the term digital, you know about the term document, you know about the term documentation. Now the term is in combination digital documentation. Please tell. Managing or storing the documents in a electronic device is known as digital Yes, documentation. very good, very good. It means creating or means the managing or creating, editing document in electronic devices. Understood? Clear? So that is called the digital documentation. Understood till here? समझ में आ गया digital documentation क्या होता है? Now Yes, sir. your computer is your electronic device. Clear? Clear? Understood? So we have to Yes. create the digital documentation in your computer. समझ में आ गया? Now in your computer only there are two things, that is the hardware or the software. Now by the hardware or by the software you can create the digital document. Please tell me. Software. Software. Yes, Software. software. Understood? Clear? It means now which software you use for creating the document, digital document in your computer? Word processor. Word, Excel. Very good. Very good. Word processor. Word processor बोलोगे आप, क्या बोलोगे? Word Word. processor. Word processor. Very good. शाबाश. चलो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों के. Word processor. अब मुझे डिफाइन करो वर्ड प्रोसेसर क्या होता है. नाउ डिफाइन वर्ड प्रोसेसर. प्लीज डिफाइन द वर्ड प्रोसेसर. अरे यार अभी तो आपने बताया मुझे कि एक सॉफ्टवेयर होता है, तो डिफाइन करना नहीं आया. चलो मैं बता देता हूँ आप लोगों को. एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, a word processor is an application software that is used to
create or manage digital documents. That is used to create or manage digital document. Understood? समझ में आ गई डेफिनेशन? ये मुझे लिखने की नीड है? Sir, I- please. हाँ, वर्ड प्रोसेसर नीड नहीं है ना? है? No, नहीं sir. जल्दी बताओ, मैं आप कहोगे तो मैं Repeat लिख। करो. Sir, no need to write. वेरी गुड, शाबाश। ओके, वर्ड प्रोसेसर दोबारा से रिपीट कर देते हैं हम। अ वर्ड प्रोसेसर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बिकॉज सॉफ्टवेयर भी तो कई टाइप के होते हैं ना कंप्यूटर में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरे काइंड के सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आपका जो वर्ड प्रोसेसर है वो किस काइंड का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टाइप का है वो, ठीक है? यस, अ वर्ड प्रोसेसर is an application software that is used to create, manage or edit digital document in your computer system. Understood? Clear है? Okay. आ जाओ अब यहाँ हम एग्जाम्पल्स समझते हैं। ये क्वेश्चंस आते हैं भाई आपके। एग्जाम्पल्स बताओ, ऐसे कौन से वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके थ्रू हम डिजिटल डॉक्यूमेंट Microsoft बनाते हैं? Word, वेरी गुड, शाबाश। Microsoft Word. Excel, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एक्सेल के थ्रू आप डॉक्यूमेंट बनाते हो डिजिटल, no, या स्प्रेडशीट है वो? spreadsheet. होती है। हाँ, वो स्प्रेडशीट होती है, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया आपका, ठीक है? दूसरा आपका होता है लिबर ऑफिस, लिबर ऑफिस राइटर, लिबर ऑफिस राइटर, ठीक है? थर्ड हो गया आपका ओपन ऑफिस राइटर, ओके? यस, नेक्स्ट हो गया आपका भाई डॉक्यूमेंट क्रिएट, तो हम किसके थ्रू भी कर सकते हैं? हम वर्ड पैड के थ्रू भी कर सकते हैं ना, वर्ड पैड, ठीक है? Yes, sir. हाँ, ठीक है, वर्ड पैड भी हो गया आपका। नोट पैड को भी बोल सकते हो आप, नोट पैड को भी, यदि हम उसमें कुछ एडिटिंग परफॉर्म कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट बना के रख रहे हैं, ठीक है? तो नोट पैड भी आप कह सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्लियर? ओके, नाउ लिसन। अब देखो बच्चों, आपकी जो ये बुक दे रखी है ना, इस बुक में आपको किसके थ्रू कर रखा है? या तो लिबर ऑफिस के थ्रू है, या फिर आपके पास ओपन ऑफिस के थ्रू है, जो सीबीएसई ने जो किया है, ओपन ऑफिस राइटर या लिबर ऑफिस राइटर। अंडरस्टूड? अब डिफरेंस क्या है इस वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो वर्ड है और इस लिबर ऑफिस या ओपन ऑफिस का जो वर्ड है, इनमें डिफरेंस क्या है? ओके, यस, नाउ लिसन इट वेरी केयरफुली। ऑफिस सूट क्या होता है? एक देखो टर्म आ रही है हमारी, अब न्यू टर्म इज देयर, दैट इज ऑफिस सूट। क्या होता है भाई ये ऑफिस सूट? प्लीज टेल मी। Office suite, listen very carefully, okay? Office suite also a suite in which two or more kinds of application softwares are comprises into a single unit. Means बहुत सारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनको बंडल्ड करके, सिमिलर काइंड्स के, अंडरस्टूड, उनको बंडल्ड करके, ठीक है, जो कि एक ऑफिस के सारे वर्क के लिए नीडेड होते हैं, ऑफिस ऑटोमेशन वर्क के लिए नीडेड होते हैं, उन सबको बंडल करके हमने एक क्या कर दिया, उनको एक कंप्राइज कर दिया किसी एक सिंगल यूनिट के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड द ऑफिस सूट। अंडरस्टूड? फॉर एग्जांपल, जैसे आपका Microsoft Office. वेरी गुड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है? दूसरा आपका सेम ऐसा ही होता है, लिबर ऑफिस, ठीक है? थर्ड आपका ऐसा ही होता है, ओपन ऑफिस। यस, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अब भाई आपने ये नाम सुने हैं आपने, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और ओपन
और free software. You listen about these kind of software names, proprietary software. Yes, sir. हाँ तो चलो बताओ मुझे क्या होता है proprietary software, क्या होता है, please tell me. Proprietary software. Which you have to pay for using. Very good, Shabas. Means these kind of software, before using you have to purchase certain kind of license, and to purchase that license you have to pay certain royalty or the fees to that organization. So that kind of software is known as proprietary software, जिनको यूज करने के लिए हमें रॉयल्टी पे करनी पड़ती है या कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है हमें, ठीक है, उन सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। जैसे आपका ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो किस काइंड का सॉफ्टवेयर है, प्रोप्राइटरी काइंड का सॉफ्टवेयर है। क्लियर? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट को यूज करने के लिए पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट की रॉयल्टी लेनी पड़ती है। अंडरस्टूड? क्लियर? समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ, दूसरा है हमारा ओपन ऑफिस। ओपन ऑफिस किस काइंड का, लिसन नाउ, सेकंड है हमारा ओपन और फ्री सॉफ्टवेयर। मींस टू यूज, We don't have to pay or any leverage or royalty. यस, मींस हमें उनको कोई भी रॉयल्टी पे नहीं करनी पड़ती यूज करने के लिए हमें। क्लियर? दे आर बिल्ड फॉर टू हेल्प द कम्युनिटी। क्लियर? हमें इनका सोर्स कोड भी मिल जाता है कि जिस प्रोग्रामिंग में वो बने हैं ना, वो कोड भी मिल जाएगा हमें इनका, यदि हम चाहें तो, ऑर्गेनाइजेशन से, और हम उसमें कुछ कोड के अंदर कुछ एडिट भी कर सकते हैं इफ वी हैव द नॉलेज। तो दैट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इज नोन एज द ओपन और फ्री सॉफ्टवेयर। अंडरस्टूड? अब इसमें भी दो आते हैं कि ओपन अलग हो जाते हैं फिर फ्री अलग हो जाते हैं, वो अलग मैटर है, चलो वो हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड? बस आपको इतना ही लर्न करना है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इन योर सिलेबस सीबीएसई प्रिस्क्राइब दिस लिबर ऑफिस और द ओपन ऑफिस, बिकॉज बोथ आर द ओपन और फ्री काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। अंडरस्टूड? क्लियर है कि एवरीबडी कैन यूज दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर विदाउट एनी पेइंग रॉयल्टी और द फीस, ठीक है? यस। तो बच्चों लिसन नाउ, लिबर ऑफिस। अब आपको क्या चाहिए भाई, प्रैक्टिकल। अब हम पढ़ क्या रहे हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हैं। हमें प्रैक्टिकल किस पे करना है, प्रैक्टिकल करना है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करना है, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। तो अब हम कौन सा यूज करेंगे, या तो हम ओपन ऑफिस यूज करेंगे या फिर हम लिबर ऑफिस यूज करेंगे, दोनों में से कोई सा भी ले लो। बट हम किसको यूज करेंगे, अभी हम लिबर ऑफिस को। आप ओपन ऑफिस भी करेंगे तो भी नो प्रॉब्लम, दोनों में एक जैसी सेटिंग ही होती है, सेम प्लेस पे होती है, ठीक है। बट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सेटिंग्स डिफरेंट प्लेस पे हो जाती है, ठीक है। अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में तो आपका क्या होता है, वर्ड होता है, बट लिबर और ओपन ऑफिस में वर्ड के जो सिमिलर सॉफ्टवेयर है वो क्या हो जाएगा, राइटर बोलेंगे उसमें हम, राइटर, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में तो क्या होगा हमारा, Excel. एक्सेल होगा। बट हेयर स्प्रेडशीट जो पैकेज है लिबर के अंदर या ओपन ऑफिस के, openoffice.org के अंदर क्या होगा, CALC के नाम से होगा, CALC के नाम से होगा। अंडरस्टूड? क्लियर? यहाँ पे Yes, sir. हमारा, हाँ ठीक है, ऐसे ही पावर पॉइंट भी होता है यहाँ पे, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ आपको अभी। सी, हम अभी लिबर ऑफिस स्टार्ट करते हैं। लिबर ऑफिस, सी एयर, ये हम क्लोज कर देते हैं, जितनी भी सीट स्टार्टेड है। नाउ आई एम स्टार्टिंग द लिबर ऑफिस। CAR, राइटर सिमिलर टू द वर्ड, CALC जो होता है सिमिलर टू द स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज सिमिलर टू द इम्प्रेस, IMPRESS, इम्प्रेस। इसमें दो एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे पेंट जो होता है वो ड्रॉ के यहाँ पे ड्रॉइंग होता है, पेंट जो सिमिलर होता है MS पेंट होता है ना, ये ड्रॉ होता है यहाँ पे। और जो बेस है वो डाटाबेस MS एक्सेस के इक्वल होता है, और ये डिफरेंट है आपका मैथ फॉर्मूला के लिए, मैथ फंक्शंस के लिए यहाँ पे ये डिफरेंट है। अंडरस्टूड? नाउ सी द सिमिलर राइटर, इफ आई स्टार्ट द राइटर तो योर राइटर विल स्टार्ट, सिमिलर लुकिंग है राइटर का आपका, जो आपका वर्ड का लुकिंग है ना, सेम लुकिंग आपका यहाँ पे राइटर का लुकिंग है, फॉर क्रिएटिंग द डॉक्यूमेंट। अंडरस्टूड? ठीक है। नाउ लिसन how you can install, see this LibreOffice, from where you can get this LibreOffice, you have to go to the Google। कहाँ से सर्च करेंगे हम, गूगल से, और यहाँ पे you have to search
ये जिगर कौन है भाई? जिगर इस समय क्लास में इन हो रहा है. हु इज जिगर? Not allowing. Now see what you have to search here. Liver. भैया आप लोग मुझे सुन रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वेरी गुड, शाबाश. अब देखो लिसन, लिबर ऑफिस हमने क्या सर्च किया गूगल पे? लिबर ऑफिस सर्च किया. ठीक है. अब सबसे पहला जो हमारा हाइपर लिंक आया तो ठीक है, दैट इज लिबर ऑफिस प्री ऑफिस डाउनलोड. यू हैव टू क्लिक ऑन दैट. अब वन विंडो विल अपीयर. ठीक है. या फिर हम डाउनलोड में चले जाएंगे. यहाँ से ये वाली विंडो अपीयर होगी आपकी डाउनलोड की. जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है आपका लिबर ऑफिस का? 6.4.5. 6.4.5. आप देखो यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे विंडोज. ठीक है. और यहाँ पे क्लिक करोगे डाउनलोड तो डाउनलोड हो जाएगा. बट बिफोर डाउनलोड यू मस्ट सी अ सिंगल प्रॉपर्टी. सी हियर, you have to go to your computer, my computer, right click on it, go to the properties. See here, in properties option you have to check your system type. your system is 64 bit or the 32 bit. यदि यहाँ पे देखो मेरा सिस्टम क्या है, 64 बिट का है, तो मुझे 64 बिट वाला ही लिबर ऑफिस डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है. यदि 32 बिट होगा यहाँ पे तो 32 बिट वाला इंस्टॉल करना है. अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखो 64 बिट है. यदि आपका 32 बिट हो तो यहाँ से 32 बिट सेलेक्ट कर देना, विंडोज 32, एंड क्लिक ऑन टू द डाउनलोड ऑप्शन. तो जैसे ही डाउनलोड करोगे तो आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा. डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, उसको यू हैव टू इंस्टॉल करने के लिए कुछ भी नहीं है. जो फाइल डाउनलोड होगी उसको डबल क्लिक करके नेक्स्ट एंड फिनिश. योर लिबर ऑफिस would be downloaded into your computer system. Understood? समझ में आ गया? Yes. Yes. हाँ, less than 1 minute is remaining for the class. तो आज के लिए इतना ही काफी रहेगा आप लोगों के लिए. ठीक है. नेक्स्ट टाइम आप लोगों को लिबर ऑफिस डाउनलोड करना है. आई विल सी इन योर कंप्यूटर दैट स्क्रीन कि आपने डाउनलोड कराया नहीं कराया लिबर ऑफिस को. सेकेंडली, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उस फर्स्ट चैप्टर को प्रिपेयर करना है आपको वीडियो देख के, और उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं. आई विल टेक द टेक्स्ट आफ्टर दैट इन नेक्स्ट क्लास. डाउट्स आर वेलकम फॉर द फर्स्ट चैप्टर. अंडरस्टूड? सर इसके नोट्स भेज देना आप. किसके नोट्स भेज दूं? चैप्टर 1. बेटा मैं वीडियोस भेज दूं.